السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ہائی ٹیک ٹی وی نیوز میں ہوں زینب غزالی۔ چلیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سنیل ڈمپل نے ریاست کی بحالی کے لیے بھوک ہڑتال اور آج لداخ بینڈ کال میں لداخیوں کی مکمل حمایت کی۔ ڈمپل نے الزام لگایا کہ بی جے پی حکومت نے ڈگروں جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جموں کشمیر پرنسلی ڈگرا ریاست کی بحالی پر بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ امتیازی سلوک، ڈوگرا ریاست کے لوگوں کے ساتھ دوسرے درجے کے شہری کی طرح سلوک اور جموں کشمیر لداخ پی او کے گلگت بلتستان JNK-KAS کے اتحاد میں کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ جھوٹ کے ویژن ڈاکومنٹ کے اوپر 5 اگست 2019 کے بعد ہی لداخ کے لوگ، وہاں کے مذہبی رہنما، وہاں کے سیاسی پولیٹیکل لیڈرز آج لداخ کو بند کیا احوان کیا ہے اور مشن سٹیٹ ہوڈ انہیں پورا اس بند میں سمرتھن دے رہا ہے۔ اور ان کی جو مانگیں ہیں وہ مشن سٹیٹ ہوڈ کا ویژن ڈاکومنٹ ہے کہ ہمارے جموں کشمیر لداخ کو ریاست کا درجہ واپس کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ہماری جموں کشمیر جو ہماری ڈوگرا ریاست ہے اس کا اسپیشل سٹیٹس 370 سٹیٹ سبجیکٹ کو واپس کر کے ہماری زمینوں کی، ہماری نوکریوں کی حفاظت کی جائے۔ اور آج لداخ کے لوگ بھوک ہڑتال کے اوپر ہے، وہاں کا LBA اور وہاں کا کرگل ڈیموکریٹک الائنس، اور ہم ان کو پورا سمرتھن کر رہے ہیں مشن سٹیٹ ہوڈ کی طرف سے، اور دیش کے پردھان منتری جی سے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ آپ کشمیر کے دورے کے اوپر 7 مارچ کو آ رہے ہیں، آپ اپنے بھاشن میں ہمارے جموں کشمیر ریاست کا درجہ واپس کرنے کی اعلان کریں۔ اور سب سے بڑی پترکار متروں، افسوس اس بات کا ہے کہ ہم پردھان منتری جی کے سمکش یہ ویرودھ دائر کر رہے ہیں کہ جموں کشمیر ڈوگرا ریاست ہے، آپ ڈوگروں سے کوئی بات چیت نہیں کر رہے ہیں، لداخ کے لوگوں کے ساتھ آپ بات چیت کر رہے ہیں، وہ آپ کی بات مان نہیں رہے ہیں، وہ جموں کشمیر کا حصہ ہے۔ آپ نے ہم تینوں بھائیوں کو کشمیر، لداخ اور جموں کا بٹوارا کر دیا، تینوں بھائیوں کو الگ کر دیا۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ڈوگروں کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ، چناؤ ویلی، پیر پنجال، پہاڑی، گجر، بکروالوں کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا ہے، اور ہم ڈوگرا ریاست کے رہنے والے لوگوں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے۔ پردھان منتری جی، یہ کیسا دور آ گیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک اور ہم آپ سے یہ وہ کہہ رہے ہیں، ایک ویرودھ درج کروا رہے ہیں کہ جموں کشمیر کی عوام بڑے مشکل دور سے پترکار متروں گزر رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، میں آپ کو بتا دوں کہ پڑھے لکھے بے روزگار نوجوان تو پریشان، تناؤ، سٹریس، ٹینشن میں تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ افسوس کی بات یہ ہے کہ جموں کشمیر کے KAS آفیسرز، کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروسز کے آفیسر، سیکریٹریٹ کے ملازم، جموں کشمیر کے IPS افسر کو بھی انصاف اور ان کی بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ہم پردھان منتری جی کے سمکش باتیں رکھنا چاہتے ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ آپ ڈوگروں کو، جو جموں کے بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار ڈوگروں کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہی ہے، کیوں نہیں کر رہی ہے؟ سپریم کورٹ نے جب آدیش جاری کیا کہ ریاست کا درجہ واپس کیا جائے، آپ ریاست کا درجہ واپس نہیں کر رہے ہیں، ہمارا سٹیٹ سبجیکٹ چھین لیا، الحاق کی شرطیں 5 اگست 2019 کو چھین لی، جن شرطوں کے اوپر اسیشن ہوا تھا وہ شرط۔ پبلک ریڈیو پر موصول ہونے والی درخواستوں کا فوری حل۔ پیر کو ہیڈ آفس میں منعقدہ عوامی خطاب میں راجندر نگر کی ایک خاتون نے کمشنر سے اپنے مکان پر غیر قانونی تعمیرات ہٹانے کی شکایت کی۔ کمشنر نے ڈپٹی کمشنر روی کمار کو حکم دیا کہ وہ 2 دن میں موقع پر تحقیقات کریں اور غیر قانونی تعمیرات کو ہٹا دیں۔ ڈپٹی کمشنر روی کمار نے فوری وہاں جا کر چھان بین کی اور غیر قانونی تعمیرات کو ہٹا دیا۔ پوچماں مندر کی پہلی برسی۔ کوکٹ پلی گاؤں میں پوچماں کے مندر کی پہلی سالگرہ کے موقع پر کوکٹ پلی کانگریس پارٹی انچارج شری بنڈی رمیش، حلقہ کانگریس کے سینئر لیڈر گوٹی ملکا وینکٹیشور راؤ عرف GVR نے شرکت کی۔ اب یہ بچہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا تعلق برہمن گاؤں کے ایک
गरीब घराने से है। बाप का छोटी उम्र में ही इंतकाल हो गया। माँ दिहाड़ी पर काम करने के बाद जो कमाई करती है इससे इस बच्चे की देखभाल कर रही है। वक्त ने बच्चे को भी दिहाड़ी पर काम पर भेजा। ये बच्चा होटल में काम करता है। गरम तेल बच्चे पर गिरा। इससे झुलस जाने वाले खानदान का हाल मालूम होने पर मेरे दोस्त मेरी तवज्जो में आए। मैंने इनसे कहा कि वो हर मुमकिन तरीके से खानदान की मदद करें और आज मैं अपने दोस्तों के साथ सरकारी अस्पताल गया ताकि इनकी मुकम्मल सेहत याब होने तक इन्हें ग़िज़ाइयत और अद्वियात दिया जाए। लोदा गाला मोहन के आमद से घर वालों को बहुत खुशी हुई और इन्होंने यकीन दिलाया कि बच्चा मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा और वो खानदान के साथ देखभाल करेगा। सबको अच्छा होना चाहिए और हमें इसमें शामिल होना चाहिए। చాలా పేద కుటుంబం ఈ అబ్బాయి రోజు కూలికి వెళ్ళి కాలిపోవడం జరిగింది పేద పరిస్థితి కాబట్టి ఈ పిల్లడు కూడా పనిచేయాల్సిన పరిస్థితి ఈ విషయం నాకు తెలియజేయడంతో నేను నా మిత్రుడు గ్రీష్మ రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ డెవలపర్స్ మోహన్ రావు గారికి చెప్పాను ఇలా ఉంది ఈ అబ్బాయి పరిస్థితి అని వెంటనే స్పందించి ఈ అబ్బాయి రికవరీ అయ్యేంత వరకు కావాల్సిన ACB KDG ने ACB की पहली छमाही सालाना मीटिंग के मौके पर ACB के एहलकारों को सेवा, उत्तम सेवा और अतिरिक्त सेवा मेडल पेश किए। इसके अलावा इन एहलकारों को इनामात, MSE और तारीफी सर्टिफिकेट दिए गए जिन्होंने गुज़िश्ता 3 माह में बदउनवानी करने वाले अफसरान के जाल बिछाने में नुमाया काम किया। जॉइंट डायरेक्टर, इंस्पेक्टर्स और DSP रैंक के सुबुकदोश होने वाले अफसरान को पुरतपाक अलविदा किया गया और ACB में ट्रांसफर होने वालों का खैर मकदम किया गया। कांग्रेस हुकूमत LRS पर अपनी बात को तोड़कर लोगों को धोखा दे रही है। LRS के नाम पर 20,000 करोड़ जमा करने के लिए 25 लाख खानदानों पर माली बोझ है। इलेक्शन से कबल किए गए वादे के मुताबिक रेगुलाइजेशन बिला मुआवजा की जाए। कांग्रेस हुकूमत छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक ये काम नहीं हो जाता। MLC शंभीपुर राजू MLA P विवेकानंद ने कहा। బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, చాలా మంది మంత్రులు ఆ రోజు అపోజిషన్ పార్టీలో ఉండి మరి ఆ రోజు బీఆర్ఎస్ స్కీమ్ తీసుకొస్తే ఎవరు రూపాయి కట్టొద్దు, మేము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఉచితంగా మేము LRS స్కీమ్ తీసుకొస్తాం, ప్రజలకు అమలు చేస్తామని చెప్పేసి ఆ రోజు ప్రకటన చేసినట్టు సంగతి గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. ఆ రోజు LRS స్కీమ్ తీసుకొస్తే ఇప్పుడున్నటువంటి మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజలు రక్త మాంసం తింటారా అని చెప్పేసి ప్రశ్నించారు. ఈ రోజు దానికి సమాధానం చెప్పాలని చెప్పేసి మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నది. కాబట్టి మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం, బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మీరు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం LRS ఉచితంగా చేయాలి, చేసే వారు కూడా ప్రజల పక్షాన చేస్తామని చెప్పేసి కూడా మరి भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा AICC नेशनल कांग्रेस के मीडिया रुकन डॉक्टर गिरिजा शेखर ने बीजेपी लीडरों से कहा कि वो बंडी संजय करीम नगर के MP के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें जिन्होंने तेलंगाना के रियासती वजीर पूनम प्रभाकर गौड़ की वालिदा के बारे में तेलंगाना स्टेट विमेंस कमीशन की चेयरमैन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी के बारे में नामुनासिब तबसरा किया। जनसेना के सरबराह पवन कल्याण ने TDP लीडर नारा चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। पवन कल्याण ने चंद्रबाबू से मुलाकात की जो इंडवाली में सुबह चंद्रबाबू के रिहाइशगाह पर आए थे। ग्रास शॉपर स्पोर्ट्स कॉरपोरेशन को कोलमपुर मलेशिया में मुनक़दा ज़ुमराजात में 16 साल से कम उम्र के बैनुल-अक़वामी फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए मदऊ किया गया था जिसमें जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, बरूनी और मलेशिया की टीमों ने हिस्सा लिया था जिसमें ग्रास शॉपर स्पोर्ट्स कॉरपोरेशन की नुमाइंदगी एल इंडिया ने की थी। मुजफ्फरुद्दीन मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रॉस शॉपर स्पोर्ट्स कॉरपोरेशन बहैसियत कोच और तीसरा मुकाम हासिल करने का मैनेजर और ये ब्रॉन्ज रास्ता है। इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से टीम इंडिया के खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया था। आगा मुजफ्फरुद्दीन ने कहा कि इस किस्म के बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट से खिलाड़ियों को हौसला मिलेगा और खिलाड़ियों को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से बैनुल-अक़वामी फुटबॉल टीमों के खिलाफ खेलने का भी मौका मिलेगा।
Coming. This is for me. I'll keep it. It's okay, I can take it for you. Okay, you can take it from here. Okay. 1, 2, 3. Ya, bagi berat sikit kapal terbang tu. Okay, nice Zidane. Jabir, Taha, very good. अन्नूर यतीम ट्रस्ट बमना की जानिब से खवातीन के दरमियान शादी से मुताल्लिक इमदादी चेक्स अन्नूर यतीम ट्रस्ट बेमना ने अपने बेमीना में एक रोजा प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये ट्रस्ट पसमानदा लड़कियों के लिए माली इमदाद फराहम करता है। 300 लड़कियों के इज्तिमाई शादी 5 मरहलों में मुनक्कद की जाएगी, जिसका आगाज 19 मई 2024 से होगा। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मारूफ सहाफी तजमुल हुसैन और दीगर मेंबरान थे, जिन्होंने बेतरतीब ट्रस्ट की मदद करने पर हौसला अफजाई की। शब्बीर अहमद रौथर चेयरमैन अन्नूर यतीम ट्रस्ट ने कहा कि हम जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। वो किसी भी वक्त हमारे दफ्तर में आकर रजिस्टर हो सकते हैं या ऑफलाइन मोड के जरिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। साथ में शबीर साहब हैं, चेयरमैन अन्नूर ट्रस्ट। ये बेमना दुर्बल में काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं, खुसूसन श्रीनगर और उसके आउटस्कर्ट्स में, रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़ में जो हमारे बच्चियां जो हैं जिनकी सेहत ठीक नहीं है, कईयों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, कईयों के वालिदैन के साये मौजूद नहीं है। और आज हमने इस साल का कैलेंडर रिलीज़ कर दिया अन्नूर ट्रस्ट का, शबीर साहब ने कुछ देर पहले, जिसमें इस साल 300 के करीब बच्चियां जो हैं उनकी शादियां हो जाएंगी। और फ़ेज़ 1 जो है वो शुरू हुआ चाहता है मई में, उसके बाद दिसंबर में आखिरी मरहला होगा। और बीते साल में 150 से ज़ायद केसेस ऐसे आए थे जिनको शायद नाम लेने वाला तक भी नहीं था, उनकी रजिस्ट्रेशन बाज़ाब्ता हो चुकी है। इस साल हमने इनको अपने उस लिस्ट में डाला हुआ है जहाँ पर मैरिज एस्टर्स। लेकिन आज का जो फंक्शन था उसमें आपने देखा कि जो ट्रस्ट बच्चियाँ जिन ट्रस्ट से, हमारे ट्रस्ट से हैं, अन्नूर ट्रस्ट से हैं, उनकी तालीम तरबियत मुकम्मल होने के बाद जो है उनका जो असिस्टेंस, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो दिया गया, जिसका गालबन ये मतलब है कि हमारा जो लाही अमल और मिशन जो है इन बच्चों की खिदमत करना है। लेकिन आप सबसे गुजारिश है, तब मुमकिन है, शबीर साहब अकेले नहीं हैं, हम भी अपने मैदान से इस मरकज़ का रुख करते आए हैं ताकि शबीर साहब कि 2023 में हमने 160 बेटियों की शादी की है मास मैरिज में, जो ऑलरेडी आपकी नोटिस में भी है, और आपकी वसातत से हमने मतलब लोगों तक भी वो बात पहुंचाई और उन्होंने शमूलियत भी उसमें की और भरपूर मावनत की अन्नूर ट्रस्ट को। और अगला प्रोग्राम 2024 का जो है एक शेड्यूल के तहत 5 फेज़ों में किया जाएगा, 300 बेटियों की शादी की जाएगी इंशाल्लाह। तेलंगाना के ओहदेदारों ने विग ऑफ हेयर रीग्रोथ शम्मा को छीन लिया। इनका दावा करने वाली हेयर रीग्रोथ तेलंगाना ने मुंशियात जब्त किए गए। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तेलंगाना मंगल के रोज नेलगुंडा में मुंशियात मेनोक्सीटोप 10%, मिनोक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन USP 10% को इस लेवल पर एक गुमराह कुन दावा करने पर जब्त किया गया कि ये दवा नए बालों की नशोनुमा के लिए है। ड्रग रूल्स के मुताबिक इस तरह के दावे का मुंशियात के लिए गुमराह कुन समझा जाता है। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर सदर सुनीता राव की सदारत में TPCC विमेंस कांग्रेस की क़ियादत में गांधी भवन में तकरीबात का इनेकाद किया गया। डॉक्टर तमिलिसाई सुंदराजन गवर्नर रियासत तेलंगाना जुनूबी अफ्रीका के मीडिया प्रोफेशनल से खिताब करते हुए
डॉक्टर शशांक गोयल AIAS इंस्टीट्यूट के DG और हुकूमत के EOSPLCS तेलंगाना रियासत तेलंगाना के मुअज़्ज़ज़ गवर्नर को एक यादगार पेश करते हुए तेलुगु देशम पार्टी के श्रीकाकुलम असेंबली हल्के के इंचार्ज गुंडलक्ष्मी देवी ने कहा कि वो गुंटूर मरकज में मुनक़दा जियाहूस BC असेंबली में इनके लीडर चंद्रबाबू नायडू के ऐलान करदा BC एलामिया का खैर मकदम करते हैं। इसी तरह इन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने शुरू से ही BC की हिमायत की है और जैसा कि इन लीडर्स ने कहा है कि तेलुगु देशम पार्टी BC के DNA में है और ये सच है कि इनके अपने ओहदे और लीडरान इन जैसे हैं। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।